And, Good afternoon, everyone. A very warm welcome to all the participants joining us today for webinar on budget highlights. I would like to first thank to our organizer, CA Dr. Raj Chawla, whose continuous effort and vision make such knowledgeable sessions possible. Today, we honored to have our esteemed speaker, CA and advocate Sachin Jain, who practices in direct tax litigation. He specializes in income tax appeals before Honorable High Court and ITAT, reassessment matters and faceless proceedings. He had also served as a member of ICI's Direct Tax Committee, Tax Audit, and contribute to guidance notes on tax audit. He is a reputed member of ITAT Bar Council Association, New Delhi, and the Sales Tax Bar Association, Delhi, and a regular speaker at professional firms and ICI's programs. We look forward to his valuable insights today. I request all the participants to stay engaged and share their questions in the chat. With that, let's begin the session. Over to you, sir. Thank you, Hitesh. First of all, thanks a lot to Raj Chawla ji for inviting me for sharing my views on the budget session in this webinar. And चावला जी के लिए अगर मैं कहूँ तो ही इज कॉन्टिन्यूसली वर्किंग फॉर द सीए फर्टर्निटी सिंस लॉन्ग और हमेशा आगे से आगे तैयार रहते हैं हर एक के लिए। और मेरे को लगता है हर सैटरडे शायद ये वेबिनार इनका फिक्स है और हर सैटरडे एक वेबिनार इनका होता है जिससे ये हम लोगों को नॉलेज शेयरिंग नॉलेज इंक्रीज करने में बहुत मदद मिलती है। तो आज का टॉपिक बजट 2026 एंड that budget was presented by our finance minister on 1st February 2026. It was her ninth consecutive budget, and this time I think for the first time I think she has announced changes in two acts. One is Income Tax Act 1961 and the other one was Income Tax Act 2025. So we will discuss both the changes in the both the acts simultaneously. And one more thing in this budget is that it is in my personal view that this is not in accordance with the policies and principles of the NDA government, because when NDA government presented the budget by Mr. Arun Jaitley, I think, so he said that we will not made any retrospective amendments. But this year, too much retrospective amendments were made, and that too also from अर्लियर अगर मैं कहूँ तो 2007 से भी अमेंडमेंट है। तो ये जो पॉलिसीज हैं ये जो लाई गई हैं रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स, दीज आर ओनली टू निगेट द जजमेंट्स गिवन बाय द कोर्ट्स एंड वी विल डिस्कस लेटर ऑन। देयर आफ्टर टैक्स रेट की अगर मैं बात करूं तो टैक्स रेट में इस साल कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि पिछले साल ही हम लोगों को अच्छा खासा एक बूस्टर डोज मिल चुका था, जिसमें कि हमें जैसे पता ही है कि अगर सैलरीड पर्सन हैं तो 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं था, या अदर पर्सन हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी छूट दी गई 12 लाख तक। तो इस साल मैडम ने हमें कोई न्यू डिडक्शन और रिलीफ हमें इस बार नहीं मिला, और टैक्स रेट सारे के सारे एज इट इज हैं एक्सेप्ट वन टैक्स रेट विच वी विल डिस्कस लेटर ऑन। Thereafter, second change is extension in due date of return. अब ड्यू डेट ऑफ रिटर्न जैसा कि हमें पता है कि पहले जो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न अभी तक है वो थी 31st of October फॉर ऑडिट केसेस, 30th November फॉर ट्रांसफर प्राइसिंग केसेस एंड 31st July फॉर नॉन ऑडिट केसेस। तो अब इसमें एक चेंज इस साल से ये किया गया है और ये चेंज 1st of March 2026 से एप्लीकेबल होगा। इट मीन्स फॉर दिस ईयर ऑल्सो दिस चेंज इज एप्लीकेबल। तो इसमें इन्होंने ये चेंज किया है दैट आपकी जो नॉन ऑडिट वाली रिटर्न्स होंगी उनके लिए जिसमें बिजनेस इनकम होगी वो रिटर्न अब 31 अगस्त तक जा पाएगी। तो अब हमारी चार डेट हो गई, फर्स्ट 30th November फॉर ट्रांसफर प्राइसिंग केसेस, 31st of October फॉर ऑडिट केसेस, 31st of August फॉर नॉन ऑडिट केसेस वेयर बिजनेस इनकम इज देयर, एंड 31st July फॉर रेस्ट ऑफ द केसेस। इसमें एक अभी जो डाउट आ रहा है वो ट्रस्ट के लिए आ रहा है कि ट्रस्ट की डेट क्या होगी। मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं अभी जो जब बजट पास होगा तो कोई ना कोई इसमें चेंज आ जाएगा, क्योंकि ट्रस्ट के ऊपर अभी एनोमली आ रही है कुछ। तो दूसरा, अब इससे हमें प्रॉब्लम एक होने वाली है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कि
31 अगस्त, क्योंकि एक डेट और आ गई अब, तो अब जो नॉन बिजनेस वाले एसएससीज होंगे वो 31 अगस्त को आएंगे ज्यादातर। तो आप लोगों के लिए ऑडिट करने के लिए एक महीना कम हो गया। पहले हम 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करके और 30 सितंबर 2 महीने हमें मिलते थे, अब वो एक महीना ही मिलेगा। तो ये एक चेंज है। देन रिवाइज रिटर्न के लिए एक्सटेंशन हो गई है। रिवाइज रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट पहले एक्ट में थी 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, अब इसको उन्होंने बढ़ा करके 31 मार्च कर दिया है। पर हाँ, इसके लिए कंडीशन लगाई गई है। कंडीशन ये है कि आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं 31 मार्च तक, सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ फीस। तो यहाँ फीस जो देनी पड़ेगी आपको वो है 1,000 रुपये देनी होगी जहां पर आपकी इनकम 5 लाख से कम है, और जहां 5 लाख से ऊपर इनकम होगी वहां पर 5,000 रुपये फीस देनी होगी। और इसके अलावा जब आप रिटर्न रिवाइज करने की सोचेंगे तो आपकी लास्ट डेट होगी दैट विल बी 31 मार्च, और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो अगर आपकी उससे पहले 143(1) आ गया तो आप उस रिटर्न को रिवाइज उसके बाद नहीं कर पाए। देन अपडेटेड रिटर्न्स जब लाई गई थी आज से कुछ साल पहले, तो उसका कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा था कि किसी की रिटर्न अगर रह गई हो या किसी को इनकम छूट गई तो वो अपडेट कर सकता था। और ये कंसेप्ट लास्ट ईयर 4 साल के लिए कर दिया गया था, 2 साल से बढ़ा करके, जो कि एक अच्छा वेलकम मूव था। इस साल इस अपडेटेड रिटर्न में दो चेंजेस किए गए हैं। पहला चेंज है कि जहां पर आपने लॉस की रिटर्न है, पहले वो अलाउड नहीं था। अर्लियर क्या था, आपकी अपडेटेड रिटर्न कुड नॉट बी फाइल्ड वेयर ओरिजिनल रिटर्न वाज हैविंग लॉस, एंड एज पर अपडेटेड रिटर्न आल्सो लॉस क्लेम्ड ऑल्दो लॉस हैज बीन रिड्यूस्ड। नाउ आपको इस केस में एक छूट मिल गई है, लॉस के केस में भी अब आप अपडेट रिटर्न कर सकते हैं। सेकंड चेंज इज विच इज वेलकम स्टेप। इसमें इन्होंने ये बोला है कि आफ्टर इश्यूएंस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 148 ऑल्सो यू कैन अपडेट योर रिटर्न। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप मैडम ने लिया है। इसमें होगा क्या, आप पहले आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते थे 148 के नोटिस के बाद। अब उन्होंने ये बोला है कि आपने जैसे अब होगा क्या, आपको 148A का नोटिस मिलेगा। 148A में आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्या एस्केप्ड इनकम आ रही है जनरली। तो उस नोटिस के बाद अगर एसएससी को लगता है कि वो रिटर्न पे टैक्स दे करके और वो पीस ऑफ माइंड परचेज कर ले, देन यू कैन अपडेट योर रिटर्न आफ्टर इशुएंस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 148। बट हाँ, इसमें कंडीशंस लगाई गई हैं। कंडीशंस ये हैं कि पहली बात तो आपको जो अपडेट रिटर्न फाइल करनी होगी वो 148 के नोटिस के टाइम पीरियड में ही करनी होगी। आपको जो टाइम पीरियड 148 के नोटिस में दिया गया है उसी के अंदर ही आपको रिटर्न अपनी जो फाइल करनी है वही आपकी अपडेटेड रिटर्न होगी, उसी में ही। उसके अलावा आपको फिर दोबारा से रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी 148 के रिस्पॉन्स में। दैट विल बी योर अपडेटेड रिटर्न। सेकेंड इज पेमेंट ऑफ एडिशनल अमाउंट ऑफ 10% ऑन द टैक्स एंड इंटरेस्ट पेबल ऑन द एडिशनल इनकम, वो आपको देनी होगी। तो ये आप 10% एक्स्ट्रा टैक्स दे करके अपनी रिटर्न को अपडेट कर सकते हैं आफ्टर रिसीविंग द नोटिस अंडर सेक्शन 148। और इसमें एक चीज और जो अमेंडमेंट किया गया है वो ये है कि जिस अमाउंट के ऊपर आप एडिशनल टैक्स 10% का दे देंगे, ऑन दैट अमाउंट पेनल्टी अंडर सेक्शन 270 कैपिटल ए विल नॉट बी लेविड। ठीक है, तो इसमें हमारे को पेनल्टी भी नहीं लगेगी अगर हमने एडिशनल टैक्स लेकर के अपडेट रिटर्न फाइल किया। एक चेंज ईएसआईपीएफ से रिलेटेड नए एक्ट में 1 अप्रैल 2026 से है। इसमें जो आपकी एनोमली चल रही थी, बहुत सारे जजमेंट्स आ चुके थे चेकमेट का, इसका उसका, तो वो सब खत्म करने के बाद अब गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि अगर आपने ड्यू डेट ऑफ रिटर्न से पहले ईएसआई का एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन जो जमा करा दिया तो आपको उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। तो ये एक अच्छा स्टेप है। और इसके अलावा एग्जेम्पशन ऑफ इनकम ऑन कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ लैंड। अगर आपकी कोई लैंड का कंपनसेशन आपको मिलता है, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट में, तो वो आपका एग्जेम्प्ट होगा विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2026। मैं साथ साथ आपको डेट भी नोट कराता चलूंगा जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। देन क्लैरिफिकेशन ऑन टीडीएस ऑन सप्लाई ऑफ मैन पावर।
मैन पावर के केस में प्रॉब्लम ये होती थी कि कभी उसका टीडीएस 194 सी में कटता था, कभी जे में कटता था। तो अब गवर्नमेंट ने एक इसको खत्म कर दिया है, और अब उन्होंने बोल दिया दैट मैन पावर सप्लाई इज ओनली अ कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस, और इसका टीडीएस 1% या 2% सब्जेक्ट टू द पर्सन की जो आइडेंटिफिकेशन है उसके हिसाब से कटेगा। देन मोटर एक्सीडेंट क्लेम जब एसएससी को मिलता था, इंडिविजुअल को मिलता था ऑन अकाउंट ऑफ डेथ और इंजरी, तो उसमें एक प्रॉब्लम ये आती थी कि एक तो उसमें जो इंटरेस्ट मिलता था उस पर टीडीएस कट जाता था। उस टीडीएस को क्लेम करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता था, क्योंकि वो 4-5 सालों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे वो लोग। उसके अलावा आई विल रिपीट लेटर ऑन, ठीक है। देन उसमें जो टीडीएस था वो कट जाता था, और उसका जो पैसा मिलता था वो भी टैक्सेबल हो जाता था। तो इस साल से 1 अप्रैल 2026 से ये एक अमेंडमेंट कर दिया है दैट मोटर एक्सीडेंट क्लेम अगर आपको कोई मिल रहा है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और उसके इंटरेस्ट पर टीडीएस भी नहीं कटेगा। देन लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट जो कि एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता था, जिसमें हम लोगों को एओ के पास चक्कर काटने पड़ते थे, और चक्कर काटने के बाद वो हमें सर्टिफिकेट लोअर डिडक्शन या नेट डिडक्शन का मिलता था। उस प्रोसेस को अब डिजिटलाइज कर दिया गया है, और डिजिटलाइज करने से क्या होगा कि आपको अब ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन फाइल करनी होगी, और उस पर एओ को डिसीजन लेना होगा वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट, एंड दैट certificate lower deduction certificate will be allowed to you. Note and required is that जहां पर पहले सेलर ऑफ प्रॉपर्टी वाज नॉन रेजिडेंट, अब सेलर नॉन रेजिडेंट है तो बायर को पैन नंबर लेना पड़ता था फॉर डिडक्टिंग टीडीएस ऑफ दैट सेलर। नाउ दिस condition is removed. No TAN number is required in case of seller is the seller of the property is non-resident, ठीक है। तो अब आपको प्रॉपर्टी के केस में टैन नंबर की जरूरत नहीं होगी टीडीएस काटने के लिए। देन एक जो कदम बजट में आया है 1 अप्रैल 2027 से, 2027 से 1 अप्रैल 2027 से है दैट योर डिक्लेरेशन ऑफ 15G एंड 15H, ये जो आप डिक्लेरेशंस फाइल करते थे ये डिक्लेरेशंस अब आप डायरेक्टली डिपॉजिटरी के पास फाइल कर पाएंगे, और डिपॉजिटरी अपने उन आपकी जो डिक्लेरेशंस हैं उनको सब आपके जितने भी डीमैट अकाउंट में शेयर्स होंगे या आपकी सिक्योरिटीज होगी उनको भेज देगा, और वो ऑटोमेटिकली सबके पास चले जाएंगे। तो आपको सेपरेट फाइल करने की जरूरत नहीं होगी, वो आपके डिपॉजिटरी के थ्रू ही सबके पास चले जाएंगे, और आपका जो डिविडेंड या इंटरेस्ट होगा वो अकॉर्डिंगली टैक्स होगा 15G और एच के अकॉर्डिंगली। देन डिसेबिलिटी पेंशन टू आर्म्ड फोर्सेस 1 अप्रैल 2026, डिसेबिलिटी पेंशन पे अगर जो आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल को मिलेगी ड्यूरिंग द ड्यूटी ओनली, वो पेंशन टैक्स फ्री होगी, एग्जेम्प्ट होगी अगर कोई उसको डिसेबिलिटी होती है ड्यूरिंग सर्विस। प्रोसिक्यूशन में प्रोसिक्यूशन के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जिसमें कि आपके प्रोसिक्यूशन की इम्प्रिजनमेंट को अब या तो रिगरस से सिंपल इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया है, या इम्प्रिजनमेंट को रिड्यूस कर दिया गया है, या हटा दिया गया है। तो हम लोग डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं प्रोसिक्यूशन को। प्रोसिक्यूशन पे उन्होंने ये चेंज किया है दैट इधर द रिगरस इम्प्रिजनमेंट इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल, और द इम्प्रिजनमेंट इज रिड्यूस्ड। दूसरा जो चेंज है ब्लैक मनी एक्ट में भी है दैट नो प्रोसिक्यूशन वेयर फॉरेन एसेट्स अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लेस देन 20 lakhs। तो जहां पर आपकी फॉरेन एसेट अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी लेस देन 20 लाख होगी वहां पर आपका प्रोसिक्यूशन नहीं होगा ब्लैक मनी एक्ट। देन ब्लॉक पीरियड इन केस ऑफ थर्ड पर्सन, अब एक चेंज जो हुआ है वो ये है कि आपके थर्ड पर्सन जहां पर जिसके यहाँ सर्च हुई है उसका नहीं, उसके यहाँ जिसका डॉक्यूमेंट मिला है थर्ड पर्सन, उनके केस में जो ब्लॉक पीरियड होगा वो उसी पीरियड का होगा जिस पीरियड के रिलेटिंग डॉक्यूमेंट मिले हैं। तो वो जरूरी नहीं है कि ब्लॉक पीरियड 10 साल का या 6 साल का बनाया जाएगा, वो उसी साल का होगा जिस पीरियड में डॉक्यूमेंट मिले हैं। हाँ, बट इसके जो डेट ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डर है वो अब 18 मंथ्स में होगी, दैट इज order in case of such to be completed within a period of 18 months from the date of the initiation of such। तो ये एक चेंज है, जो अर्लियर 12 मंथ का था अब वो 18 महीने का कर दिया गया। पेनल्टीज को कन्वर्ट कर दिया गया है फीस में 1 अप्रैल 2026 से।
तो पहली जो कन्वर्ट की गई है पेनल्टी वो थी टैक्स ऑडिट की। जो टैक्स ऑडिट की पेनल्टी हमारी लगती थी 1.1%, और सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1.5 लाख, उसको कन्वर्ट कर दिया गया है फीस में। अब फीस में कन्वर्ट करने से प्रॉब्लम ये होने वाली है कि सपोज, क्योंकि गवर्नमेंट को ये पता था कि जो टैक्स ऑडिट की पेनल्टीज है वो नहीं लग पा रही है, और अभी तक 2 4 10 लोगों को छोड़ के किसी के पास नोटिस भी नहीं आया होगा, तो उन्होंने ये करा है, अब इसको फीस में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब फीस में कन्वर्ट करने से ये होगा कि जब आप रिटर्न या टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करेंगे तो अब along with that report or return you have to submit the fees। तो गवर्नमेंट के पास ऑटोमेटिकली एक फीस या जो पैसा है वो आ जाएगा। अब इसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है दैट 75,000 फॉर 1 मंथ एंड 1,50,000 देयर आफ्टर। तो अगर आपने 1 महीने तक एक भी दिन आपने लेट कर दी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, तो 75,000 रुपये आपके फीस देनी होगी, और उस 1 महीने के बाद 1.5 लाख रुपये हो जाएगी। तो ये फिक्स कर दिया है। ऐसे ही टीपी की रिपोर्ट पे, टीपी की रिपोर्ट में भी 50,000 फॉर 1 मंथ एंड 1 लाख फॉर देयर आफ्टर। तो 1 महीने तक 50,000, उसके बाद 1 लाख रुपए फीस हो गई। देन पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स या इनएक्यूरेट रिपोर्टेबल अकाउंट आप जो कन्वर्ट करते थे, उसकी सब पेनल्टी मैक्सिमम 1 लाख कर दी गई है, जो पहले मैक्सिमम अमाउंट नहीं था। देन न्यू पेनल्टी एक लगा दी गई है, अगर आप क्रिप्टो एसेट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं या इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन देते हैं, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। देन पेनल्टी विद असेसमेंट, एक जो चेंज है 1/4/2027 से ये होने जा रहा है कि अब जो आपका असेसमेंट ऑर्डर पास होगा, पेनल्टी ऑर्डर भी उसी के साथ ही पास होगा। तो इससे होगा क्या कि आपकी पेनल्टी और असेसमेंट की प्रोसीडिंग्स एक साथ खत्म होंगी, और ये जो है वो 1 अप्रैल 2027 से एप्लीकेबल है ये प्रोविजन। तो रिडक्शन हो जाएगी इसमें मल्टीपल प्रोसीडिंग्स की। पहले क्या होता था कि हमारी असेसमेंट होती थी, फिर असेसमेंट की अपील चलती थी, फिर उसके बाद पेनल्टी लग जाती थी, पेनल्टी की अपील चलती थी, पेनल्टी लगती भी असेसमेंट के बाद थी, तो वो टाइम पीरियड का गैप हो जाता था और असेसी को अननेसेसरली इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह लग जाती थी। वो सब बर्डन ऑफ कोर्ट भी बढ़ रहा था, तो वो हटाने के लिए इन्होंने ये प्रोविजन लाए हैं, और अब आपका लिटिगेशन भी रिड्यूस हो जाएगी इससे। बट हाँ, अगर लाइटर साइड पे कहूँ तो हमारा काम थोड़ा सा कम हो जाएगा। नो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 220 टिल पासिंग ऑफ ऑर्डर बाय द सीआईटी अपील। अगर आपका पेनल्टी ऑर्डर पास हुआ है, तो पेनल्टी ऑर्डर के केस में आपके ऊपर इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 220 नहीं लगेगा जब तक आपका सीआईटी अपील का ऑर्डर पास नहीं हो जाता। इंक्रीज ऑफ पेनल्टी मैक्सिमम अमाउंट इज 1,000 रुपीज से 25,000 रुपये पेनल्टी इंक्रीज कर दी है 133B में, जहां पर आपके पास पावर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है एओ के पास। अगर एओ आपको कोई नोटिस भेजता है, आप उसको कंप्लाई नहीं करते, तो 25,000 रुपये की पेनल्टी हो जाएगी। सेक्शन 115 BBE, जो हम लोगों के लिए शुरू से एक बुरा टैक्स रेट था 60% का, उसको अब उन्होंने 1/4/2026 से 30% कर दिया है, फ्रॉम 60%। तो अब आपकी अगर एडिशन होगी इन रिलेशन टू सेक्शन 68 69A B C D, तो पहले जो 60% टैक्स रेट था प्लस सरचार्ज था, वो अब 30% प्लस सरचार्ज 25% प्लस सेस 4% वो लगेगा। हाँ, बट इसमें इन्होंने एक काम किया है कि इसकी जो पहले अलग से 10% पेनल्टी लगती थी, वो पेनल्टी इन्होंने रिमूव कर दी है, और इसके लिए पेनल्टी 270 कैपिटल ए में सबस्यूम कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब आपके ऊपर पेनल्टी 270 कैपिटल ए में लगेगी मिस रिपोर्टिंग या अंडर रिपोर्टिंग की, अगर आपने कोई आपकी ये एडिशन हुई तो 115 BBE की। इम्यूनिटी जो हमें 270 AA में मिलती थी पिछले 1961 के एक्ट में, उस इम्यूनिटी को उन्होंने क्या किया है, इस इम्यूनिटी को इन्होंने बढ़ा दिया है कि प्रेजेंटली जो इम्यूनिटी मिलती थी वो मिस रिपोर्टिंग के केस में मिलती थी, अंडर रिपोर्टिंग में नहीं थी। बट इस साल से इन्होंने अंडर रिपोर्टिंग में भी इस पेनल्टी को इंट्रोड्यूस कर दिया है, और ये जो चेंज है ये 1 मार्च 2026 से होगा। और अब आपको अंडर रिपोर्टिंग के केस में भी इम्यूनिटी मिल जाएगी पेनल्टी अंडर सेक्शन 270 कैपिटल ए से, बट सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ एडिशनल 100% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल ऑन सच इनकम इन लिeu ऑफ पेनल्टी। तो आपको 100% ऑफ द टैक्स का अमाउंट पे करना होगा आपको, अगर पेनल्टी से बचना है तो। देन इम्यूनिटी ऑल्सो वेयर एडिशन मेड अंडर सेक्शन 102 to 106।
यानी कि अगर आपकी एडिशन होती थी पहले, अगर मैं बात करूं ओल्ड एक्ट में 68 से लेकर और 69D तक, तो आपको इम्यूनिटी नहीं थी। बट अब आपको 1 अप्रैल 2026 से इन सेक्शंस के लिए भी अगर कोई एडिशन आपकी होती है तो इम्यूनिटी मिल जाएगी, विद द पेमेंट ऑफ एडिशनल 120% ऑफ द टैक्स अमाउंट ऑन दैट इनकम। आपको एडिशनल 120% टैक्स देना होगा और तब आपको इम्यूनिटी इस सेक्शन से भी मिल जाएगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में इन्होंने डिडक्शन ऑन डिविडेंड रिसीव्ड बाय कोऑपरेटिव फ्रॉम अदर कोऑपरेटिव ये एग्जेम्प्ट कर दिया है। अगर आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी को किसी और कोऑपरेटिव से कोई डिविडेंड मिल रहा है तो वो एग्जेम्प्ट होगा, सब्जेक्ट टू आप वो सारा डिविडेंड अपने मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दूसरा, डिडक्शन ऑफ डिविडेंड्स रिसीव्ड बाय नोटिफाइड फेडरल कॉर्पोरेशन कोऑपरेटिव्स फ्रॉम कंपनीज फॉर 3 years। अगर आपको किसी फेडरल कोऑपरेटिव को कोई डिविडेंड मिल रहा है कंपनी से, वो 3 साल के लिए एग्जाम्प्ट होगा, सब्जेक्ट टू कि वो आप डिविडेंड अपने मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ओनली ऑन द इन्वेस्टमेंट्स मेड अप टू 31 जनवरी 2026। तो इसके बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर डिविडेंड मिलेगा, दैट विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन, एंड दिस डिडक्शन विल बी अवेलेबल इन बोथ न्यू एंड ओल्ड रिजीम। कैटल फीड और कॉटन सीड को भी इन्होंने कोऑपरेटिव की उसमें ऐड कर दिया है, तो दिस इज नॉट सो बिग चेंज। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव को भी कोऑपरेटिव सोसाइटी की डेफिनेशन में ऐड कर दिया है 1 अप्रैल 26 से। देन फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी अगर कोई फॉरेन कंपनी इनकम जनरेट करती है बाय वे ऑफ प्रोक्योरिंग डाटा सेंटर सर्विसेज, तो उसको 2047 तक कंडीशन टू सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। Then two specified business of non-residents excluded from MAT provisions. Exemption to individuals being non-resident for 5 consecutive years immediately preceding the year in which he visits India for the first time for rendering services in connection with any scheme notified and other conditions. तो अगर कोई इंडिविजुअल इंडिया में विजिट करता है नॉन रेजिडेंट और वो 5 कंजिक्यूटिव सालों के लिए उसको छूट मिल जाएगी सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस और स्कीम्स नोटिफाई होगी इसकी एक। मैट प्रोविजंस जो 1 अप्रैल 2026 से मैट के अंदर मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स में जो चेंज किया गया है, पहला चेंज दैट मैट इज कन्वर्टेड इनटू फाइनल टैक्स। इसका मतलब ये हुआ कि 1 अप्रैल 2026 से अगर आप मैट के अंदर कोई टैक्स पे करेंगे दैट विल बिकम योर फाइनल टैक्स, उसका आगे आपको ब्रॉड फॉरवर्ड क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो मैट का क्रेडिट उन्होंने यहाँ पर ही खत्म कर दिया और न्यू टैक्स रिजीम में ही आपको क्रेडिट मिलेगा, ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। सब्जेक्ट टू set off of MAT credit in new tax regime for domestic companies only to the extent of 25% of tax liability। आपकी जितनी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी उसका 25% आपको क्रेडिट मिल जाएगा, बैलेंस आपका कैरी फॉरवर्ड वो आपको आगे ऐसे ही 25-25 करके मिलेगा। For foreign companies, set off allowed to the extent of difference between the tax on total income and the MAT for the tax year in which normal tax is more than MAT। टीसीएस के रेट्स, टीसीएस के रेट्स को उन्होंने यूनिफॉर्म बनाने की कोशिश की है। टीसीएस के रेट्स जो इंक्रीज हुए हैं दैट इज इन केस ऑफ अल्कोहलिक लिकर 1 to 2 1% से 2%, तेंदुल लीव्स फ्रॉम 5 to 2%, सेल ऑफ स्क्रैप 1% to 2%, सेल ऑफ मिनरल्स 1% to 2%, रेमिटेंस अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम जो हुआ करती थी 5% टैक्स लगता था टीसीएस, अब वो 2% हो गया है, तो मैक्सिमम रेट उन्होंने 2% कर दिया है। देन वन इज सेल ऑफ ओवरसीज टूर। सेल ऑफ ओवरसीज टूर में पहले लिमिट थी 10 लाख रुपए, 10 लाख से कम पे था 5% और 10 लाख से ऊपर पे था 20%, अब उसको उन्होंने रिड्यूस करके 2% सिंपल कर दिया है। अब कोई लिमिट आपके पास नहीं है, देन यू हैव टू डिडक्ट कलेक्ट टीसीएस ऑन ओवरसीज टूर एट द रेट ऑफ 2%। कुछ छोटे छोटे अमेंडमेंट्स, पेनल्टी फॉर नॉन फर्निशिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ क्रिप्टो एसेट जो मैंने बात की थी 200 रुपीज पर डे, पेनल्टी फॉर फर्निशिंग इन एक्यूरेट पर्टिकुलर्स रुपीज 50,000। अगर आप क्रिप्टो एसेट की कोई गलत इंफॉर्मेशन देंगे तो 50,000 की पेनल्टी लगेगी। डेफिनेशंस ऑफ कमोडिटी डेरिवेटिव एंड ऑथराइज्ड पर्सन इंट्रोड्यूस्ड इन द न्यू एक्ट जो छूट गई थी, माइनर करेक्शंस कुछ रह गई थी वो भी इन्होंने एक्ट में नए एक्ट में कर दी हैं, जैसे हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड थी जो इंटरेस्ट के ऊपर थी,
कि इंटरेस्ट जो आपका पिछले सालों का 5 सालों का जो मिलता था बिफोर कंस्ट्रक्शन, वो भी अब आपको मिलेगा। पहले वो एक्ट में एनोमली रह गई थी, वो इन्होंने रिमूव कर दिया है। नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर अर्निंग डिविडेंड और इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। तो अब होता क्या था कि आपको डिविडेंड मिलता था या इंटरेस्ट मिलता था, उसके अगेंस्ट हम लोग एक्सपेंडिचर क्लेम करते थे। तो 1 अप्रैल 2026 से वो डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। इन केस ऑफ डिविडेंड्स और इंटरेस्ट अर्न्ड आप कोई भी खर्चा क्लेम नहीं कर पाएंगे इंटरेस्ट से रिलेटेड। एग्जेम्पशन फॉर गोल्ड बॉन्ड्स, जो गोल्ड बॉन्ड्स हम लेते थे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, वो एग्जेम्प्ट होते थे जब हम मेच्योर होते थे। तो अब उस बॉन्ड्स की ट्रेडिंग भी हुआ करती है बीच में ही। तो गवर्नमेंट ने ये कर दिया है अब कि अगर आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की एग्जेम्पशन लेनी है तो आपको वो बॉन्ड्स जिस दिन वो इशू हुए ओरिजिनली वहां से लेकर मेच्योरिटी तक रखने पड़ेंगे, तभी आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। अगर अदरवाइज अगर आप बीच में ट्रेड करते हैं तो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। एसटीटी के रेट्स उन्होंने कुछ इंक्रीज कर दिए हैं। इसकी डिटेल में जाने की मैं जरूरत नहीं समझ रहा। खैर, बायबैक ऑफ शेयर्स, इस बार फिर बायबैक ऑफ शेयर्स को गवर्नमेंट ने छेड़ा। 1 अप्रैल 2026 से फिर बायबैक में चेंज आ गया है। बायबैक ऑफ शेयर्स, जो पिछले साल तक ऐसे लगता था कि जो भी आपको पैसा मिलता था वो आपका डीम डिविडेंड बन जाता था, अब उन्होंने डीम डिविडेंड की डेफिनेशन में से इसको हटा दिया है। तो अब जो आपको बायबैक पे पैसा मिलेगा 1 अप्रैल 26 से, वो टैक्सेबल होगा एज कैपिटल गेन। हाँ, इसमें इन्होंने रेट्स कुछ इंक्रीज कर दिए हैं। इन केस ऑफ प्रोमोटर्स एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी लगा दिया है, तो वो एक सेपरेट इशू उन्होंने लगा दिया है। ट्रस्ट के केस में जब कोई रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मर्ज होती थी अदर रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो अर्लियर उसकी जो एक्रेडिटेड इनकम होती थी उस पर टैक्स लग जाता था, जो एक्ट में प्रोविजन था। अब उन्होंने उसको रिमूव कर दिया एनोमली को, और उन्होंने कहा है कि अगर आपका कोई एक ट्रस्ट रजिस्टर्ड ट्रस्ट दूसरी रजिस्टर्ड ट्रस्ट के साथ मर्ज कर जाएगी और उसके जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो सेम या सिमिलर होने चाहिए, तो और अदर कंडीशंस प्रेस्क्राइब फुलफिल करेगी, तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। रिमूवल ऑफ रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू वायलेशन ऑन अकाउंट ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज बाय रजिस्टर्ड एनपीओ, ये भी एक छोटा सा चेंज था जो एक्ट में 2025 में था, उन्होंने चेंज कर दिया है। रजिस्टर्ड एनपीओ ऑल्सो अलाउड टू फाइल बिलेटेड रिटर्न्स, ये एक चेंज और किया। अब आते हैं हम असेसमेंट्स के ऊपर। असेसमेंट्स और रीअसेसमेंट के केस में सेक्शन 144 सी, सेक्शन 144 सी में कंट्रोवर्सी थी कि दैट whether the assessment in case of transfer pricing or non-resident to be completed within the limitation period under section 153 153b or section 144c। तो अब इस केस में बहुत सारी जजमेंट्स कोर्ट ने पास किए, जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स हैं ये। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आया है 1 अप्रैल 2009 से अंडर सेक्शन 153 एंड 1 अक्टूबर 2009 से अंडर सेक्शन 153 बी। तो अब उन्होंने कहा है कि जो आपकी टाइम लिमिट लगेगी वो 144 कैपिटल सी से लगेगी, ना कि 153 या 153 बी से लगेगी इन केस ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग असेसमेंट और नॉन रेजिडेंट असेसमेंट। तो यहाँ पर एक चेंज किया गया है ये जजमेंट्स को नेगेट करने के लिए। टनेज स्कीम एक्सटेंडेड टू इनलैंड वेसल्स, टनेज स्कीम जो अभी तक नहीं थी इनलैंड वेसल्स पे, वो दे दी गई है। अब आते हैं 92 सी ए। 92 सी ए के अंदर भी बहुत सारे जजमेंट्स कोर्ट्स के आ गए थे। इसमें जो चेंज किया गया है वो किया गया है विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2007 से। अब गवर्नमेंट 1 जून 2007 से ये चेंज किया गया है। इस चेंज को सिर्फ और सिर्फ जजमेंट्स को नलीफाई करने के लिए किया गया है। सेक्शन ये कहता था 92 सी ए दैट वेयर लिमिटेशन, अब उन्होंने कर दिया है वेयर लिमिटेशन एक्सपायर्स। अगर आपकी लिमिटेशन एक्सपायर हो रही है 31 मार्च को, तो 31 मार्च से 2 महीने पहले ऑर्डर हुआ करता था, तो अब उन्होंने कह दिया है द ऑर्डर कैन बी पास्ड बाय द ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ऑन 30 जनवरी, अगर वो लीप ईयर नहीं है, और अगर लीप ईयर है तो 31 जनवरी तक आपका लिमिट एक्सपायर कर जाएगी। और इन केस अगर आपकी लिमिटेशन 31 दिसंबर को एक्सपायर हो रही है, उस केस में 1 नवंबर तक आपका ऑर्डर पास हो जाएगा। तो इस सेक्शन की अमेंडमेंट को पढ़ने से मुझे ये लगा कि क्या डीमिंग कैन बी इफेक्टिव रिट्रोस्पेक्टिवली।
मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि डीमिंग को रिट्रोस्पेक्टिवली क्या मैं कैसे सोचूं कि मैंने जो कर दिया वो गलत था। मैं नहीं सोच पा रहा कि मैंने ये काम 2007 से करना शुरू किया, आज मैं 2026 में बैठा हूँ और मुझे सरकार ये कह रही है कि आप ये सोच लो कि आपने 1 जून 2007 से जो भी किया था वो सब गलत था, अब वो सब दोबारा से होगा। तो गवर्नमेंट ने सेटल्ड पोजीशन को अनसेटल करना करना शुरू कर दिया इस रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट की वजह से। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स हैं, दीज मस्ट बी चैलेंज्ड बिफोर द कोर्ट्स एंड द फेट, आई डोंट नो, बट दीज प्रोविजंस विल डेफिनेटली बी चैलेंज्ड बिफोर द कोर्ट्स, क्योंकि अगर आप 2007 से पोजीशन को अनसेटल करना शुरू कर दोगे तो क्या ह्यू एंड क्राई मचेगी, कितने बड़े बड़े ट्रांसफर प्राइसिंग के केसेस होंगे, वो सब जो निगेट हो गए होंगे इस सेक्शन की वजह से, वो सब फिर से लाइव हो जाएंगे। अब गवर्नमेंट कैसे करेगी उनको, ये एक देखने की बात है। क्योंकि अगर हम देखें तो कितना टाइम कोर्ट्स का वेस्ट हुआ, कितना एडवोकेट्स, कितने असेसी की कॉस्ट भी लगी, असेसी कितनी बार अपील्स में गया होगा, कॉस्ट भी जमा, फीस भी जमा कराई, एडवोकेट्स को फीस दी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को फीस दी, वो सब पैसा कूड़े में चला जाएगा इन नेगेट जजमेंट सेक्शंस की वजह से। शेल्टर, मेरे हिसाब से रॉन्ग डूइंग ऑफिसर्स को एक शेल्टर दिया गया है, उनके लिए एक स्कीम लाई गई है कि आपने जो गलत कर दिया उसको हम ठीक कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट्स ने बड़ी बड़ी कंसिडरेशन करते हुए, बड़ी विचार करते हुए, अपना टाइम लगाते हुए जजमेंट्स जो थे वो दिए और लॉ को एक सेटल्ड पोजीशन तक लाए थे। अब उस सेटल्ड पोजीशन को फिर से चेंज कर दिया गवर्नमेंट ने पीछे से ले जाकर के। अब इसका फेट ऐसा होने वाला है कि सारे केसेस दोबारा से खुलेंगे, क्या होगा ये अभी कहना मुश्किल है, बट एक एक पिक्चर सी, अलग सी पिक्चर नजर आ रही है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब तो मेरे दिमाग में एक ऐसी पिक्चर बन रही है कि कोर्ट्स जजमेंट देने से पहले ऑफिसर से या डीआर से ये पूछेंगे कि आप बता दो, आप रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट तो नहीं लाओगे, हम जजमेंट कैसे दें, क्या करें। तो दूसरा जो दूसरा जो अमेंडमेंट लाया गया, इट इज ऑल्सो with effect from 1st October 2019 in respect of document identification number. अब डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, हम सब लोगों को याद होगा कि एक नोटिफिकेशन सीबीडीटी ने सर्कुलर इशू किया था 14 अगस्त 2019 को, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर आपको कोई भी कम्युनिकेशन या नोटिस या ऑर्डर डिपार्टमेंट से मिलता है जिस पर डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर डिन नहीं है, तो वो नंबर, वो जो डॉक्यूमेंट है या नोटिस है वो नोनेस्ट होगा। और हमारी एफएम साहिबा ने भी बहुत बार ये कहा और उनके वीडियोस भी अवेलेबल है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर आपको कोई भी नोटिस बिना दिन के मिले तो उसे उठाकर कूड़े की टोकरी में फेंक देना। अब सडनली ये जो अमेंडमेंट 292 बी ए, एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है, उस सेक्शन में उन्होंने ये कह दिया है अब कि notwithstanding anything contained in any judgment, order or decree of the court for the removal of doubts, it is hereby clarified for the purposes of section 292b that no assessment under any of the provisions of the act shall be invalid or shall be deemed to have been invalid on the ground of any mistake, defect or omission in respect of quoting of computer generated din in the, if the assessment order is referenced by such number in any। तो हम लोगों को याद होगा कि उस सर्कुलर में ये भी लिखा था कि अगर आपने कोई नोटिस या कोई ऑर्डर बिना डिन के लिया दिया तो आपको विद इन सर्टेन डेज आपको पीसीआईटी की अप्रूवल लेनी है, उस डिन को अप्रूव करना है, डिन को डालना है। बट वो सब गवर्नमेंट ने एक झटके में निगेट कर दिया और ये एक नया सेक्शन 292 कैपिटल बी कैपिटल ए इंट्रोड्यूस किया 1 अक्टूबर 2019 से। तो अब मैं ये नहीं समझ पाया कि 14 अगस्त 2019 से और 1 अक्टूबर 30/9/19 तक क्या होगा, इस पीरियड को क्यों मैडम ने छोड़ दिया। रीजन जो मेमोरेंडम में दिया गया है इस सेक्शन को लाने का, दैट इज टू प्रोवाइड सिंप्लीफिकेशन इन लैंग्वेज एंड प्रोविजंस सो एज टू अवॉइड इंटरप्रिटेशनल इश्यूज एंड प्रिवेंट लिटिगेशन। अब इससे लिटिगेशन प्रिवेंट होगी या लिटिगेशन बढ़ेगी, ये तो आगे आने वाला टाइम बताएगा। क्योंकि इसमें ये कहा गया है दैट इट इज क्लैरिफिकेटरी।
अब क्लैरिफिकेशन की जरूरत कहाँ थी मुझे नहीं समझ में आया। एक सर्कुलर इशू हुआ, उस सर्कुलर के बेसिस पे काम करना था ऑफिसर्स को, उन्होंने नहीं किया, उन्होंने उस सर्कुलर को नहीं माना। तो क्या ये डाउट था? क्या इसके लिए क्लैरिफिकेशन की जरूरत थी? इसके लिए तो कोई क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं थी। हाँ, गवर्नमेंट चाहती तो अपना सर्कुलर विड्रॉ कर लेती बैकडेट से। वो सर्कुलर आज भी विड्रॉ नहीं किया, उस सर्कुलर को आज भी लाइव रखा है, क्योंकि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ये मानती थी। इसको लाने का पर्पस डिन का क्या था? डिन को लाने का पर्पस ये था कि कोई भी ऑर्डर, कोई भी नोटिस बैकडेट में इशू ना हो पाए, और उस पर कंप्यूटर जनरेटेड डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर लग जाए, जिससे कि वो डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेटेड हो जाए कि ये डॉक्यूमेंट इस दिन जनरेट हुआ। तो गवर्नमेंट को भी ये पता था कि ऐसा हो रहा है, कि ये ऑर्डर्स या नोटिस बैकडेट में हो रहे हैं, इसीलिए ये दिन आया था। अगर आप लोगों को याद हो तो पहले इनकम टैक्स एक्ट में भी ये प्रोविजन आया लाया गया था, बाद में उसे रिमूव कर दिया गया। तो ये अगेन एक रिवार्ड है टू द एरेंट ऑफिसर्स हु हैव नॉट फॉलोड द सीबीडीटी सर्कुलर इशूड डिस्पाइट जजमेंट ऑफ द कोर्ट्स। कोर्ट्स के जजमेंट आने के बाद भी ऑफिसर्स नहीं मान रहे थे, उन्होंने अपने का तरीके से ये काम करना जारी रखा बिना डिन के। और ये एक एमनेस्टी स्कीम लाई गई है उन ऑफिसर्स के लिए जिन्होंने इस डिन के सर्कुलर को अवॉइड किया, बिल्कुल भी नहीं माना। तो मेरे ख्याल में क्या ये कोर्ट को एक इनडायरेक्ट ऑर्डर नहीं है कि हम जो भी करें, गलत करें, सही करें, हम तो बैकडेट से ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट ले आएंगे और आप कोई ऑर्डर पास नहीं कर पाएंगे। कि कोई भी गलती अगर ऑफिसर ने करी भी है, तो वो गलती के बेसिस पे आप कोई भी ऑर्डर को इनवैलिडेट नहीं कर सकते। तो क्या ये इनडायरेक्ट ऑर्डर टू द कोर्ट्स नहीं माना जाएगा? मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। देन अर्लियर, अब 292 कैपिटल बी कैपिटल ए, ये एक, इसमें इन्होंने कहा कि 292 बी का रेफरेंस दिया। सेक्शन 292 बी क्या कहता है? सेक्शन 292 बी कहता है कि अगर कोई नोटिस या डॉक्यूमेंट या ऑर्डर ये इशू किया जाता है जिसमें कोई एरर, डिफेक्ट या ओमिशन रह जाती है, तो वो उसको इनवैलिड नहीं कर देगा। अब इन्होंने उसी सेक्शन को यहाँ पर और ज्यादा सपोर्ट दे दिया इस 292 बी ए से। तो आने वाले टाइम में ये पता चलेगा, क्योंकि ये मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग भी है ब्रेंडिक्स मैरिशस के केस में, और बहुत सारे केसेस में ये डिन की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या जजमेंट देता है, डिसीजन देता है, वो देखने वाली बात होगी कि इस केस में क्या होगा। क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर को नेगेट करने के लिए नया सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया गया। मैं तो ऐसा लगता है कि तलवार से लड़ने के लिए तोप का सहारा लिया गया। अब एक और सेक्शन जो नया इंट्रोड्यूस किया गया है, सेक्शन 147 कैपिटल ए। मेरे को याद है 2021 में जब मैंने फेसलेस प्रोसीडिंग्स के ऊपर बोलना शुरू किया था, तो फेसलेस में मैंने सबसे पहले ये बोला था कि दैट ऑल नोटिस इशूड with effect from 1st April 2021 will become invalid because of the faceless proceedings, section 151 कैपिटल ए। अब गवर्नमेंट ने उस सेक्शन को निगेट करने के लिए एक नया सेक्शन 147 कैपिटल ए खड़ा कर दिया, और ये सेक्शन फिर रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट 1/4/2021 से ले आए। इसमें इन्होंने क्या कहा है, that notwithstanding anything contained in any judgment, order or decree of any court or in section 151 capital A or in any scheme framed thereunder, for the removal of doubts, it is hereby clarified that the assessing officer for the purposes of section 148 and 148 capital A shall mean and shall always be deemed to have been meant but to be an assessing officer other than the NFAC or assessment unit रेफर टू इन सेक्शन 144 बी। अब कहने का मतलब ये था कि जितने भी नोटिस अंडर सेक्शन 148 या 148 कैपिटल ए में इशू किए जाएंगे, दैट इज टू बी इशूड बाय द ज्यूरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर जाओ। और 1/4/21 से आपको, हमें सबको पता है कि 1/4/21 के बाद जितने भी फेसलेस, जितने भी 148 या 148 ए के नोटिस आए, दैट वर इशूड बाय द जाओ। तो उन्होंने इस 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 डिफेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, इस डिफेक्ट को एक असली जामा पहनाने के लिए ये सेक्शन लेकर के आए 147 कैपिटल ए, और उन्होंने उन सारे नोटिस को वैलिडेट कर दिया। अब क्या कोर्ट्स इस पर डिसीजन लेंगी, ये अभी बहुत जल्दी होगी कहना, क्योंकि मेमोरेंडम के अंदर लिखा है कि
देयर इज अ लाइन बिटवीन द असेसमेंट एंड प्री असेसमेंट स्टेज। गवर्नमेंट का कहना यह है मेमोरेंडम के हिसाब से कि यहाँ पर एक लाइन क्रिएट की गई थी असेसमेंट और प्री असेसमेंट के बीच में, कि प्री असेसमेंट जो करेगा वो जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर करेगा और असेसमेंट जो है वो फेसलेस वाला करेगा। तो मुझे ये नहीं समझ में आया आज तक कि ऐसी लाइन क्रिएट करने की जरूरत क्यों है। क्यों गवर्नमेंट ये चाहती है कि 148 के नोटिस और 148 ए की प्रोसीडिंग्स तो जाओ करे, और 148 के बाद नोटिस इशू होने के बाद जो प्रोसीडिंग्स है वो फेसलेस ऑफिसर करे। ऐसा क्या है इन प्रोसीडिंग्स में जो इनको आप हटाना चाहते हैं फेसलेस से? कुछ तो गवर्नमेंट ने सोचा ही होगा, क्योंकि मेमोरेंडम में ये भी कहा गया है कि दैट इट वाज नेवर द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर टू मैंडेट द एनएफएसी और एयू टू इन्वॉल्व इन प्री असेसमेंट स्टेजेस इन एनी मैनर। तो अगर आपकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये मेमोरेंडम में लिखा है ये बात कि ऐसी कोई इंटेंशन लेजिस्लेचर की नहीं थी कि एनएफएसी या एयू को हम प्री असेसमेंट स्टेज में ले आए, तो फिर आप 151 कैपिटल ए या ऐसी स्कीम क्यों लेकर के आए? ये एक क्वेश्चन है। अब इसका आंसर आने वाले टाइम में कोर्ट्स ही दे पाएंगी। अगेन इट इज क्लैरिफिकेटरी इन नेचर एंड फॉर रिमूवल ऑफ डाउट्स दिस सेक्शन। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सेक्शन ला सकती है या नहीं ला सकती, ये तो आने वाले टाइम में कोर्ट से डिसाइड करेंगी, क्योंकि मेरे हिसाब से ये सेक्शन लाकर कोर्ट कोर्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सेटल पोजीशन को फिर से अनसेटल कर दिया है। अभी तक आप लोगों को याद होगा कि 1/4/21 से 30/6/21 के बीच में जितने नोटिस इशू हुए, उन नोटिस के लिए पहले एक एक स्टेज हुई, एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज हुई, दूसरी के बाद अब तीसरी स्टेज चल रही थी, और अब फिर चौथी स्टेज शुरू हो जाएगी। हाँ, मैं ये मान सकता हूँ कि लॉयर्स के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए काम बढ़ जाएगा, क्योंकि ये स्टेज गवर्नमेंट, मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट फिर से एक नोटिफिकेशन लेकर के आ जाएगा इससे रिलेटेड कि जी ये जितने भी केसेस हुए थे वो सारे के सारे हम रीओपन करेंगे। अब वो उसकी टाइम लिमिट देखनी पड़ेगी, उसका सर्कुलर का इफेक्ट देखना पड़ेगा। बट हाँ, ये मेरे को लगता है कि ये इस चीज का एक अंत नहीं होने वाला। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अपने आप को सेव करने के लिए कुछ ना कुछ नए नए अमेंडमेंट इसी से रिलेटेड ला रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि इस अमेंडमेंट को लाने का रीजन यही है सिर्फ कि टू अचीव सर्टेनिटी एंड क्लैरिटी एंड अवॉइड लिटिगेशन। पर क्या ये सब चीजें गवर्नमेंट अटेन कर पाएगी? लिटिगेशन तो बढ़ती जा रही है इस नोटिस के ऊपर। इट इज क्लियर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द जुडिशरी, क्योंकि जुडिशरी ने जो जजमेंट दिया एडमिनिस्ट्रेशन उसको फिर निगेट कर रही है। अब वो क्या होगा मुझे नहीं पता। 148 और 143 टू के बीच में भी एक डिफरेंस चल रहा है सर। 148 नोटिस आर इशूड बाय द, अगर आप लोगों को ध्यान हो, 148 के जितने नोटिस इशू किए वो जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर ने किए, और 143 टू के नोटिस इशू किए फेसलेस असेसिंग ऑफिसर ने। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? क्यों एक नोटिस जाओ इशू कर रहा है, एक फाओ इशू कर रहा है? ये जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। पर हाँ, ये एक सेटल्ड पोजीशन जो है वो अनसेटल्ड तो जरूर हो रही है। दूसरा, एक नई स्कीम फॉरेन एसेट से डिस्क्लोजर स्कीम एक नई लाई गई है। ये स्कीम का नोटिफिकेशन अभी आएगा, इसके रूल्स बनेंगे जस्ट लाइक लास्ट ईयर जो वीएसवी स्कीम्स आई थी। तो इसमें इन्होंने जो चेंज किया है दैट ब्लैक मनी इम्पोजिशन एक्ट 2015 में, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो 1 जुलाई 2015 से और 30/9/2015 तक एक सिंगल कंप्लायंस विंडो खोली गई थी, और उस विंडो के अंदर उन्होंने बोला था कि आप अपने डिक्लेरेशन जो फॉरेन एसेट से डिक्लेरेशन 31 मार्च 2015 की है वो कर दीजिए। बट उन्होंने लिखा है दैट इट इज ऑब्जर्व्ड दैट नॉन कंप्लायंस वाज प्रिवेलेंट इन केसेस इन्वॉल्विंग लीगेसी और इनएडवर्टेंट नॉन डिस्क्लोजर फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स। तो बेसिकली ये स्कीम स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए है। उन्होंने कहा कि स्मॉल टैक्स पेयर्स के कुछ एसेट्स डिस्क्लोज होने रह गए हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि कोई फॉरेन एम्प्लॉयमेंट में था और उसको ईसॉप्स मिल गए, या उसका कोई डोरमेंट बैंक अकाउंट फॉरेन में पड़ा हुआ है ड्यू टू दैट सर्विस, या फॉर्मर स्टूडेंट्स के बैंक अकाउंट्स पड़े हुए हैं कुछ, वो डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे हैं। सेविंग्स और इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑन रिटर्निंग नॉन रेजिडेंट्स पड़ी हुई हैं,
या असेट्स हेल्ड बाय इंडिविजुअल्स ऑन ओवरसीज डेप्यूटेशन है। तो ये छोटी छोटी चीजें थी जो फॉरेन एसेट्स अभी तक पड़े हुए थे लोगों के, और उन्होंने डिस्क्लोज अपनी रिटर्न में नहीं किए थे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ये स्कीम लेके आई है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये कहा है दैट इंफॉर्मेशन रिसीव्ड अंडर ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रेमवर्क अबाउट द सेम, और टाइम बाउंड स्कीम होगी ये फॉर 6 मंथ्स, और इसमें इम्यूनिटी भी मिल जाएगी आपको प्रोसिक्यूशन से। तो इसमें आपको जो टैक्स देना है वो 30% टैक्स एट द रेट 30% ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2026, और द अमाउंट ऑफ इनकम नॉट डिस्क्लोज्ड along with an additional amount of 100% of tax payable on such asset और income, जहां पर एसेट और इनकम आपके 1 करोड़ से कम होंगे। और कुछ केसेस में ऐसा भी होगा जहां पर आपने एसेट एक्वायर किए होंगे आउटसाइड इंडिया, बट when such person was non-resident or the assessee was has bought the asset out of the income declared in the return of income in India, उन केसेस में उन्होंने 1 लाख रुपए की फीस रखी है, बट हाँ सब्जेक्ट टू दैट वैल्यू ऑफ एसेट इज लेस देन 5 करोड़। तो ये कुछ जो चेंजेस थे बजट से रिलेटेड। जीएसटी के अंदर कोई खास चेंज नहीं आया है। कस्टम ड्यूटीज में कुछ चेंजेस हैं। मेरा एरिया कस्टम का और जीएसटी का नहीं है। मैं इनकम टैक्स के फील्ड में ही ज़्यादातर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो अब जिनका भी कुछ, मेरे पास एक मैसेज आया था, आई थिंक कि कुछ रिपीट करने के लिए बोल रहे थे वो शायद। तो क्या चीज़ रह गई है सर, वो बताइए, मैं रिपीट कर देता हूँ। मिस्टर लोकेश केरा, ही वांट्स टू से दैट ही जस्ट ज्वाइंट। तो सर मैं अगर कहूँ तो रेट ऑफ टैक्स में कोई चेंज नहीं है। एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ रिटर्न भी उन्होंने एक्सटेंड कर दी है, अप टू 31 ऑफ अगस्त कर दी है, जिसमें नो सॉरी बिजनेस इनकम नॉन ऑडिटेबल केसेस वो 31 अगस्त हो गई है। इसके अलावा कोई क्वेरी हो, आई विल रिस्पॉन्ड टू द क्वेरी ऑल्सो। पिंकी गोयल जी की क्वेरी है सर, फिक्स्ड एसेट के केस में 5 करोड़ थ्रेशोल्ड इज फॉर बैंक बैलेंस और इंटरेस्ट, फॉरेन एसेट के केस में that 5 crore limit is for the when the where the madam uh, when the asset was acquired outside India, when such person was non-resident, or the assessee has bought the asset through the declared income in India but the asset was not declared, इस केस में 5 करोड़ की लिमिट है। मैट चेंजेस के लिए अगर मैं बात करूं तो मैट के अंदर पहला चेंज ये हुआ है दैट मैट विल बी ट्रीटेड एज नाउ फाइनल टैक्स। तो अगर आप अपनी रिटर्न मैट के अंदर टैक्स देते हैं तो उस के केस में आपका मैट का टैक्स फाइनल हो जाएगा, आपको मैट का क्रेडिट आगे नहीं मिलेगा। दूसरा जो चेंज आया है दैट योर मैट रेट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 15% टू 14%, 1% रेट कम कर दिया गया है मैट का। देन थर्ड चेंज इज दैट योर मैट क्रेडिट विच इज लाइन विद यू is to be allowed as 25% to the extent of 25% of tax liability। ये आपका 3 चेंजेस आए हैं इसमें मैट में। Are there any relaxation under Black Money Act for foreign assets and foreign income exceeding 5 crores? I don't think, sir, there is any change in relation to Black Money Act in relation to that limit you are saying. In Black Money Act, there is only one change that up to 20 lakh rupees, no prosecution will be there. In new regime, MAT credit in first year is 20%, but about next year? तो ये आपका जो 25% है ये कैरी फॉरवर्ड, रेस्ट ऑफ द 75% विल बी कैरी फॉरवर्ड एंड दैट विल बी अलाउड सब्जेक्ट टू दैट अगेन 25% इन द नेक्स्ट ईयर्स। बट 25% से ज्यादा आपको मेट का क्रेडिट नहीं मिलेगा 1 साल में।
Changes for 270AA will be applicable for undergoing current cases as well. 270AA is the immunity, I think, na? That immunity changes are from 1st of March 2026 in respect of penalty for misreporting or underreporting, and any the changes in respect to the addition made under section 68 etc. will be from 1st of April 2026. तो आपको ये जो इम्यूनिटी मिलेगी अगर आपको सेक्शन 68 से रिलेटेड एडिशंस की है वो 1 अप्रैल 2026 के बाद मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलेगी. Any change for HUF taxation? No, sir. No change in HUF taxation, sir. Sir, this 25% is related to tax liability, not credit accumulated. This is 25% is relating to tax liability. जितने भी 148 नोटिस क्वैश किए हैं क्या वो सब अब वैलिड माने जाएंगे और डिपार्टमेंट विल इशू. मैंने जैसा बताया सर कि ये 148 का एक पंडोरा बॉक्स नया खुलने वाला है और अब डिपार्टमेंट को ये देखना होगा कि क्या कोई सेक्शन लगा करके 155 आई थिंक 155 सेक्शन में कुछ लीवरेज मिलेगी उसको तो वो खोल सकता है दोबारा से, क्योंकि डिपार्टमेंट ने ये बोला है कि दैट दीज नोटिसेस विल नॉट बी सॉरी दिस नोटिसेस आर नॉट इनवैलिड एंड शैल नॉट बी डीम्ड टू बी इनवैलिड. तो ये जो डीमिंग सेक्शन भी लगाया है उन्होंने ये इसीलिए लगाया है कि ये कभी भी ये इनवैलिड होंगे, हुए ही नहीं थे आज तक. तो ये आपका एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलने की उम्मीद मुझे पूरी पूरी है. ये डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन आ जाएगा जल्दी ही, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे तो 2-3 दिन पहले डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन सर्कुलर इशू किया है अपने जितने भी डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव थे कि आप इनसे रिलेटेड जो डिन के रिलेटेड जो जाओ फाओ से रिलेटेड जो आपके 144C से रिलेटेड केसेस थे उनमें डेट ले लीजिए. आप कोई भी ऑर्डर नहीं करवाएंगे, इनमें सब में आप डेट ले लीजिए क्योंकि अब एक्ट में चेंज होने वाला है 1 मार्च 26 को. बजट उससे पहले पास हो जाएगा और ये चेंज आ जाएंगे. तो इन्होंने अपने सब डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स को एक इंस्ट्रक्शन इशू कर दिया है कि आप सब केसेस में एडजर्नमेंट ले लीजिए. हितेश जी, मिस्टर हितेश. हमारे मॉडरेटर साहब हितेश जी, हितेश सोनी जी. हाँ जी सर, बोलिए क्या हुआ. सर अगर कोई और क्वेरी हो तो मैं जवाब दे दूं, अदरवाइज एक मिनट, एक दो क्वेरी और आ गई है, मैं देख लेता हूँ, एक मिनट रुकिए. सर नाउ वी कैन वी फाइल अपडेटेड रिटर्न्स फॉर द केसेस इन विच नोटिसेस हैव बीन इशूड अंडर सेक्शन 144 बट असेसमेंट नॉट कंप्लीट. नो सर, नो नो नो. आप नोटिस आप अपडेटेड रिटर्न नहीं इशू कर सकते फाइल. अपडेटेड रिटर्न सिर्फ और सिर्फ 148 के रिस्पॉन्स में होगी और वो भी जब नोटिस इशू होगा उसके बाद. अब आपका नोटिस 148 का तो इशू हो चुका है ऑलरेडी और आपको जो रिटर्न अपडेटेड फाइल करनी है वो भी आपको फाइल करनी है सिर्फ और सिर्फ नोटिस अंडर सेक्शन 148 भी जितना टाइम दिया है वहां तक. अगर आपने उसके लेट फाइल करी तो वो अपडेटेड रिटर्न आपकी इनवैलिड हो जाएगी. इस टीसीएस ऑन स्क्रैप इज यस सर, स्क्रैप पे भी 1% से 2% टीसीएस हो गया है. जबकि आप लोगों को शायद ध्यान हो कि अगर पहले 1% टीसीएस जब लिकर पे भी होता था, मेरे पास बहुत सारे केसेस आए जिसमें डिपार्टमेंट ने 143(2) इशू कर दिया. उन्होंने कहा कि आपका जो टीसीएस कटा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आपकी इनकम कम आ रही है. अब डिपार्टमेंट को इतना समझ नहीं आ रहा है कि अगर मेरी 100 करोड़ की सेल है, उस 100 करोड़ पे मेरा 1% 1 करोड़ रुपीज टीसीएस कटा हुआ है, तो मैं 1 करोड़ पे टैक्स नहीं दूंगा, 1 करोड़ का टैक्स नहीं पे करूंगा, मैं तो रिफंड मांगूंगा ही मांगूंगा. पर डिपार्टमेंट को ये बात समझ में नहीं आती है. पर हाँ, आने वाले टाइम में ये और प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि जब आपका 100 करोड़ की सेल पे 2 करोड़ टीसीएस कलेक्ट हो जाएगा, उस 2 करोड़ में से आपने सपोज 50 लाख पे भी टैक्स दिया तो आप 1.5 करोड़ रुपए रिफंड मांगेंगे और आपका रिफंड मांगते ही आपका 143(2) का नोटिस आपके पास आ जाएगा. आई थिंक आई हैड रिप्लाइड ऑल द क्वेरीज. हितेश जी और कोई क्वेरी हो तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ.
Hello, participants. Is there Sir, any other query? Sir, I think we should end the session now. Thank you, Sachin ji, for thank you, your sir. wonderful deliberation, Sir, thank you detailed so much. discussion on the budget, and sparing your valuable time for the knowledge sharing to all our members. Sir, So thank I you am so much. also thank you every members who have attended this, and members. The recording of this webinar along with the budget book written by our CA Dr. Girish Ahuja ji will be given to all of you. और हितेश इसकी रिकॉर्डिंग इमीडिएटली लगा के और आज ही सबको बजट की बुक भी और ये भी रिकॉर्डिंग सबको भेज के जाना बेटा, ठीक है? Okay, sir. तो सबको मिल जाएगी गिरीश आहूजा जी की बजट वाली सॉफ्ट कॉपी. तो प्लीज एंजॉय दिस बजट सेशन एंड थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir. थैंक यू Thank you so एवरीवन. much. Sir, I have a question if I can. Yes, या sir. या Yes, प्लीज sir. Sir, Please, प्लीज. बताइए, बताइए. Just I have been issued a order under section 144 in the January last week, right? 144 in January. Okay, Yeah, ठीक है. and they have initiated the penalty proceedings under section 270A, respect of 270A 9, Yes. specifying that it is for under-reporting of income in consequence of misreporting. Misreporting. Yes. Yeah. So will I be eligible for this immunity that they have provided in this amendment or not? नहीं सर, आप इम्यूनिटी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जो इम्यूनिटी है ना, वो आपको जो इम्यूनिटी होती है, दैट इम्यूनिटी इज अवेलेबल व्हेन यू हैव नॉट फाइल्ड द अपील, and also when you have deposited the tax within a month given in the demand notice. तो वो So आपने my नहीं किया order होगा. was issued, sir, sorry to interrupt in between. My order was issued only, let's say, 10 days back. So I still have 20 days to pay the initial demand. I am ready to pay that under section 176. I am ready to pay that. Okay. Next demand I am ready to pay. I still have 20 days to pay that. But what my concern is the penalty in 278(9). That would be 200% of taxes now. Yes, yes. Will I be able to eligible for this immunity of 100% of tax or not? सर, आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, मैं आपको देख के बता दूंगा. Sure, और sir. आप मेरा नंबर 9810170619. Yes, sir. 9810170619. 619. आप मुझे कल फोन कर लीजिएगा, मैं आपको देख के बता दूंगा कल सर. Right, sir. ठीक है. Thank you so much. Okay. थैंक यू सो मच. Bye-bye. ओके. Thanks, Raj, sir. Thank you. Sachin, sir, thanks. Thank you. Uh, okay, sir. And the end, I would like to thank CA Dr. Raj Chawla for organizing this insightful webinar. Okay, sir.